Hello everyone. Today we are going to start next workbench, that is a surfacing workbench. Right? In surfacing workbench we will work on a 0 mm thickness. Actually 0 mm thickness don't exist, but uh, in a surfacing we don't have need to apply a thickness. Means without thickness we can work in a surfacing workbench. Basically surfacing workbench is used for to create a design of a complicated shapes, right? That we not create in a part design sheet metal. So all complicated shape we can create in a surfacing easily. And most of the time we are mostly it will use for a tool designing, like a mold design, fixture design. It is very helpful for a tool designing, right? And most of the plastic component we can create in a surfacing workbench easily, right? So let's see. First go here new, and for a surfacing workbench just go for a part with double click. Okay, see, this is the surfacing workbench. And most of the commands like extrude, revolve, swap, loft are similarly uh, that we will discuss in a feature. Extrude, revolve, all these command extrude, revolve, sweep, left are same, but basic difference क्या रहने वाला? In a feature the body or part create in a form of solid body. In a surface the component create in a form of face, right? So this is the basic difference, but the procedure for using a extrude, revolve are same in a surfacing and similarly in a feature, right? Let's see. First of all just create a plane, show किया plane को, then go to extrude and select a plane and just create any profile here. Okay, then exit from a sketch and define the value, some value like suppose 50. Okay, now you can see all the option in a top, that's the front, all same that we already discussed in a feature. Hope you all must know about this command extrude, revolve and swap, loft, right? These are same in a surfacing, right? Now first sketch plane, कहाँ से start करना? From a sketch plane. If you want some offset just click on offset and you can define the distance here like 10. So it will start after leaving a 10 from a sketch. See, okay, all these options are same. From a sketch plane means जहाँ पे sketch है वहीं से वो start करेगा. And in a direction one all these options are same, up to vertex, up to surface, offset from surface, right? And this is a draft option. Suppose करो मैं इसको बढ़ा देता हूँ कुछ आगे. Then draft mean आप उसको एंगल के ऊपर ऐड कर सकते हैं. Just click on a draft and you can put an angle here like 10. It will add on a 10-degree angle all the four faces, right? And here you can make it outward, inward. And cap option, cap end means for a direction one, cap end means कि जगह जो end है वो cover हो जाएगा, उसको fill करेगा surface से. And other end क्या रहेगा? उसका open रहेगा. Direction 2 में क्या हो जाएगा? वो open. You can see this end is open because it's for a direction 2 and direction 1 का जो end था उसने इसको cap end means उसने इसको वहाँ पे surface add कर दिया. For a direction 2 you got the same option here for a direction 2. मैं ड्राफ्ट को निकाल देता हूँ तो लीनियरली ऐड करेगा लाइक दिस. कैप एंड ऑप्शन यहाँ पे भी रहेगा. अगर सपोज करो मैंने कैप एंड फर्स्ट के लिए भी किया है, अभी फिर भी देखते हैं. देखो अभी वो इन अ फॉर्म ऑफ फेसेस है, लाइक इट्स अ होलो ऑब्जेक्ट, राइट? बट do we know the thickness of these faces? इसका thickness क्या है इस वाले फेस का? We don't know, हमको मालूम ही नहीं, हमने इसको डिफाइन ही नहीं किया कि उसका thickness क्या है. That's why हम उसको बोलते हैं 0 mm thickness, right?
तो इन दी फॉर्म ऑफ 0 वो कंपोनेंट को क्रिएट करता है, राइट। बट ऑल दीज कमांड्स एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वैप, ऑल दीज आर सेम, राइट। सो दिस इज द सरफेस एक्सट्रूड। एंड नेक्स्ट मैं अगेन स्केच क्रिएट करता हूँ, वो भी द सरफेस एक्सट्रूड। सेकेंड प्रोफाइल निकाल देता हूँ यहाँ पर, like this, exit, okay, and now all these are same up to surface. Which surface? Up to this surface, select it up to this surface। क्या हुआ? बट जैसे मैंने बोला अप टू सरफेस, वो कंप्लीट बॉडी को सिलेक्ट किया उसने, दैट्स वाई उसने उसको ऐड नहीं किया। अगर मैं ऑप्शन यहाँ पे करता हूँ अप टू वर्टेक्स, ये को स्क्रॉल करो, ये वर्टेक्स लेता हूँ मैं, तो उस वर्टेक्स तक हो जाएगा। अगर ब्लाइंड किया तो जो वैल्यू हम डालें, स्क्रॉल करो 50 है तो 50 mm तक ऐड करेगा। अप टू सरफेस, अप टू वर्टेक्स में वर्टेक्स यूज किया तो अप टू दिस वर्टेक्स हो जाएगा। बट सरफेस के फॉर्म में क्या, जिसमें अप टू सरफेस बोला तो ऑल बॉडी को सिलेक्ट करता है, राइट, कंप्लीट बॉडी को सिलेक्ट करता है, राइट। इसके लिए हमको मीन्स अभी क्या हमारा जो बॉडी है दैट इज अ यूनाइट बॉडी, और वो कम्प्लीटली क्या है बॉडी बन चुका है, यूनाइट है वो। दैट्स वाई अगर मैं एक फेस को पिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, वो ऑल बॉडी को पिक करता है। बट अगर हमारे पास कोई सेकंड सरफेस रहेगा, अगर बॉडी का सरफेस रहेगा वहाँ पे, देन वी कैन यूज हियर अप टू सरफेस, राइट, हम उसका यूज कर सकते हैं। देन अदर ऑप्शन अप टू बॉडी, तो हम उसका यूज कर सकते हो बॉडी, इफ यू हैव ए बॉडी हियर वी कैन, ऑल दीज ऑप्शन आर सेम दैट वी आर डिस्कस इन अ पार्ट डिजाइन, राइट। अगर आपको कोई डाउट लगता है इसमें, कभी भी कोई ऐसा है कि ऑप्शन नहीं हो पाता, तो आस्क मी, आई विल क्लेरिफाई, राइट, हाउ टू वर्क। नाउ अगेन गो इनटू स्केच। अभी मैं सेकंड स्केच यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, थर्ड वन। सपोज करो हियर वी हैव अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट, राइट। देन अब इसको एक्सट्रूड कर देते हैं इन अ सरफेस, एक्सट्रूड इट, ओके। इन अ बोथ मिड प्लेन हम यूज कर सकते हैं, यहाँ से मिड प्लेन यूज करेंगे डायरेक्ट समान से, उसने ऐड किया। अभी इस प्लेन के ऊपर जाकर के स्केच बनाएंगे। जस्ट गो हियर एंड क्रिएट अ प्रोफाइल, फॉर द रेक्टेंगुलर प्रोफाइल, ओके। It's a rectangular profile, okay, exit। now go to surface and extrude it, करते हैं अप टू बॉडी। सो कौन सा बॉडी है, वो बॉडी अपने को डिफाइन करना पड़ेगा, दिस और बॉडी, दिस इज आवर बॉडी। तो उसने क्या किया, उस बॉडी तक वो उसको ऐड करेगा। सिमिलरली अगर अप टू सरफेस करेंगे तो सरफेस होना चाहिए, अगर इसको पिक करता हूँ तो इसको अलग सरफेस कंसीडर किया उसने, यहाँ तक जाएगा। इसको बॉडी भी कंसीडर करते हैं, इसको सरफेस भी। इफ़ यू हैव ए प्लेनर सरफेस हेयर, देन you, if you want to use up to surface, then you can use, right, up to vertex, blind, all these are same। in a blind you can just put the value 5, 50, up to 50 हो जाएगा, okay। This is the extrude command, okay। now next one is a revolve, delete all these, okay, next one, and next one is a revolve। in a revolve select plane, just create a profile, means in a revolve we can rotate a profile about any axis। so first just create a profile, one more thing,
In a surfacing, we can add material with the help of open profile, but in a part design we need to create a closed profile to make a solid body. But here, without any closed profile, we can add material here. Okay, so this is our profile like this. लाइक दिस मैं कुछ भी स्केच बनाता हूँ अभी कोई भी आता है से। अभी मैं विदाउट डायमेंशन ऐसे कोई प्रोफाइल क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, उसको डायमेंशन नहीं डिफाइन कर रहा हूँ, जस्ट ऐसे मैं नॉर्मली क्रिएट कर रहा हूँ उसमें। ओके, ओके मैं दोबारा से बनाता हूँ अच्छा सा। फर्स्ट एक्सिस निकाल लेते हैं जिसके बाद अपने को रोटेट करना है लाइक दिस। एक्सिस निकाल तो आइडिया लग जाता है कि अपने को कितने डिस्टेंस से लेके जाना है। ओके, अब यहाँ से मैं स्केच बना रहा हूँ। ओके, ओके यहाँ पे एक आर्क ऐड कर देता हूँ कुछ मैं फर्स्ट। ओके लाइक दिस। सो अब इसको मेरे को क्या करना है, एग्जिट इसको करना रिवॉल्व। जैसे आप एक्सिस निकालते हो तो आपको एक्सिस के लिए पूछेगा ही नहीं हो। मैंने क्या किया, रेफरेंस एक्सिस पहले निकाल के लिया यहाँ पे मिडिल वाला एक्सिस ये, तो एक्सिस के लिए पूछेगा नहीं कि किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है। इफ़ यू ऑलरेडी क्रिएट दिस वन, अभी मैंने इसको क्रिएट करके लिया है, देन उसके अबाउट से उसको रोटेट कर दिया है। देन कितने एंगल पे इसको रोटेट करना है, आई वांट ऑन 180, सो इट रोटेट ऑन एंगल ऑफ 180 डिग्री। एंड फॉर अ सेकंड यू कैन हियर डिफाइन सपोज 50 डिग्री। सो इन अ डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज अप टू 50 डिग्री एंड एंटी क्लॉकवाइज उसने जो ऐड किया है सब 180 डिग्री, राइट लाइक दिस। इट्स अ रिवॉल्व। ओके, ऑल दीज आर सेम, बट जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इन द फॉर्म ऑफ फेस, सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं बनता। और हमारा प्रोफाइल क्या था अभी, ओपन प्रोफाइल हमने जो क्रिएट किया था, जो हमारा स्केच था इट्स अ ओपन प्रोफाइल। बट इन अ फ्यूचर फॉर अ पार्ट डिजाइन we need to create a closed profile. Without closed profile we don't create we don't add a material, but in a surface we can add material with a open as well as with a closed profile. You can see this is a open profile. Okay, अगर close रहेगा then भी हम create कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, but it depend on योर प्रोफाइल योर ऑब्जेक्ट। उसके लिए आपको कैसा स्केच निकालना है, क्लोज प्रोफाइल निकालना पड़ेगा या फिर उसके लिए ओपन निकाल के आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। देन हियर अभी हम देखते हैं नेक्स्ट कमांड। सपोज करो मैं क्रिएट करता हूँ एक यहाँ पे
like this shape. Okay, this is remove, exit, close. मैं इसको डिलीट कर देते हैं इसको। ओके, इसको करते हैं अभी सरफेस में जाकर के एक्सट्रूड, सरफेसिंग के सरफेस में जाएंगे हम, मिड प्लेन, राइट। अभी मैं ऐड करता हूँ सेकंड बॉडी फ्रॉम अ मिडिल प्लेन। ओके, लाइक दिस, एग्जिट, और इसको भी ऐड कर देते हैं सरफेस से, एक्सट्रूड करते हैं सरफेसिंग में जो मिडिल प्लेन, लाइक दिस। सी here we have two bodies, first and second, but these two are intersect to each other. So now अगर हमको क्या करना है, suppose I want to trim this bottom surface या middle वन या top, मेरे को कुछ भी इसमें से अनवांटेड जो सरफेस है, जो मेरे को रिक्वायर्ड ही नहीं है, जो मेरे को डिलीट करना है, ट्रिम करना है, हम उसको निकालना चाहते हैं यहाँ से, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, दैट इज अ ट्रिम सरफेस। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन अ सरफेसिंग, ट्रिम सरफेस। ओके, जो भी अनवांटेड सरफेस रहेंगे उसको निकालना है, वहां से ट्रिम करना है, यू कैन यूज दिस ऑप्शन। सो फर्स्ट गो टू जस्ट ट्रिम सरफेस, here we have a two options, standard and second one is a mutual. So in a standard, first go with the standard. So here in a selection it's asking for a trim tool. Tool means with the help of, जिसकी हेल्प से हमको क्या करना है, ट्रिम करना है, that is a trim tool. So suppose करो I want to trim this object, this one, right? So for that we can use this object as a trim tool, right? किसको हम trim tool यूज करेंगे, इस वाले ऑब्जेक्ट को। ट्रिम टूल में क्या रहेगा, जिसकी हेल्प से आपको ट्रिम करना है। अभी हमारे पास टू बॉडी है जो इंटरसेक्ट करे, ये और ये। अगर हमको ट्रिम किसको करना है, इस वाले को, तो ट्रिम टूल कौन सा बनेगा, जो हमने सेलेक्ट किया, ब्लू वन, राइट। नाउ हियर वी हैव टू ऑप्शन, कीप सिलेक्शन, अदर सेकंड वन इज अ रिमूव सिलेक्शन। कीप सिलेक्शन मीन्स क्या, अभी इफ यू एक्टिव कीप सिलेक्शन हेयर मीन्स जो भी आप सरफेस सिलेक्ट करने वाले हो वो रहेगा, बाकी सब निकल जाएंगे। इन अ रिमूव, इफ यू कीप रिमूव हेयर देन दैट वन यू गोइंग टू सिलेक्ट, वो क्या हो जाएगा, फिर रिमूव हो जाएगा वहां से। इट्स ऑन यू हाउ यू वांट टू यूज दिस वन। सपोज करो अभी मैं इसको यूज कर रहा हूँ बाय यूजिंग अ रिमूव, मैं चाहता हूँ कि नीचे वाला रिमूव हो जाए, सिलेक्ट किया, एंड ऊपर वाला भी रिमूव हो जाए। ओके, देखो दोनों फेस निकल चुके हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता है कीप सरफेस में, देन वो दोनों रहते और बीच वाला निकल जाता, राइट। ऐसे कुछ ट्रिम हो गया वो। अगेन जाता हूँ, गो टू ट्रिम सरफेस। अभी मैं चाहता हूँ कि अगेन स्टैंडर्ड का यूज करता हूँ, बट अभी मेरे को जो करना है उसमें क्या है कि मेरे को बीच वाला सरफेस निकालना है, ये वाला जो इसके बीच में आता है, ये वाला यहाँ का जो फेस निकालना है मेरे को, ठीक है ना, ये बीच का। तो फेस किसका है, इस वाले ऑब्जेक्ट का है, तो उसके लिए टूल क्या बनेगा, फिर ये बन जाएगा, ये टूल बन गया। रिमूव करना है ये मिडिल का, लेवल से नीचे से भी रिमूव करना है ये मिडिल का, तो क्या करेगा, देखो ऐसे उसने क्या किया, इस वाला सरफेस को भी निकाल देगा, अंदर से होलो बना दिया, तो इस टाइप का ऑब्जेक्ट हमको मिल जाएगा, राइट। बट किसका यूज करके किया हमने, ट्रिम में स्टैंडर्ड का यूज करके किया। एंड हियर सपोज करो अभी मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे मैं फिलेट अप्लाई करना चाहता हूँ, मीन्स रेडियस ऐड करना चाहता हूँ। सो फॉर अ रेडियस गो हियर with the fillet tool, just select it। क्यों, तो देखो सिलेक्ट ही नहीं करता इसको वो, बट जैसे ही मैं इस वाली एज को पिक कर लेता हूँ, इस वाले को इसने सिलेक्ट किया, बट इसको नहीं सिलेक्ट करेगा, इसको भी नहीं सिलेक्ट करेगा वो,
बिकॉज जो फिलेट अप्लाई होगा वो कहाँ पे होता है, एज के ऊपर अप्लाई होता है, कॉर्नर्स के ऊपर अप्लाई होता है। बट अभी हमको जो विजिबल है ये लगता है कि कॉर्नर है, बट इट्स नॉट अ कॉर्नर। ये क्या है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है इस वाली बॉडी के लिए और आउटर वाली बॉडी के लिए। बट वो क्या जॉइन नहीं है, वो कंबाइन नहीं है, मर्ज नहीं है एक दूसरे के साथ। दीज आर टू डिफरेंट बॉडी। ये अलग से बॉडी है और ये सेकंड बॉडी है। दीज आर टू डिफरेंट बॉडी, दिस वन एंड दिस वन। सो इसलिए वहाँ पे वो उसको फिलेट अप्लाई नहीं कर रहा है। जस्ट ये बॉडी के एक दूसरे के क्लोज में आकर के रखी है, हमने ट्रिम किया ना, दैट्स वाई वो एक दूसरे के पास में है, इसलिए हमको लगता है कि वो एक ही बॉडी है। इट्स नॉट अ सिंगल बॉडी, इट्स अ डिफरेंट बॉडी, दिस वन एंड दिस वन। बट फिलेट के लिए कंपल्सरी क्या है, अगर ये एज के ऊपर फिलेट अप्लाई करना मीन्स ये बॉडी और ये बॉडी मर्ज होना जरूरी है, तब जाके कॉर्नर बनेगा। जैसे कि ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर किसके लिए, इस बॉडी के लिए है। जैसे ये कॉर्नर है इस बॉडी के लिए, बिकॉज ये सरफेस और ये वाला सरफेस, ये सरफेस और ये एक दूसरे के साथ मर्ज है। बट ये नहीं है, ये वाला सरफेस, ये वाला एज नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमको यहाँ पे फिलेट अप्लाई करना है, सो बिफोर अप्लाई टू फिलेट हमको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू यूनाइट दिस टू बॉडी। ओके, किसको, इस वाले को इस वाली बॉडी के साथ हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मेक अ यूनाइट। सो हाउ, with the help of a neat surface. If you have a two different body and you want to merge this, so you can merge by using a neat surface. Okay, so just go here, I want to merge this body with the inside one. कौन सा है, ये वाला, इसके साथ मर्ज करना है। दोनों को सिलेक्ट करेंगे एंड ओके, सो क्या करेंगे, दोनों को मर्ज कर देगा। अभी हम फिलेट के लिए जाएंगे, देखो अगेन गो टू फिलेट, सिलेक्ट एज। अभी देखो उसने फिलेट अप्लाई किया, बिकॉज अभी क्या हो चुका है, वो मर्ज हो चुकी है, बॉडीज कंबाइन हो चुकी है। कौन सा बॉडी, ये वाला बॉडी अंदर वाला था जो, अरे बाहर वाला, वो एक बॉडी बन चुका है। दैट्स वाई अभी वहाँ पे फिलेट अप्लाई होता है। मीन्स जब हम ट्रिम में स्टैंडर्ड का यूज करके ट्रिम करेंगे, वो ट्रिम करता है बट बॉडी को मर्ज नहीं करता, याद रखिएगा। whenever we are going to trim by using a standard, it will trim but not merge the body, right? If you want to merge body with a trim, so you can use another option here. Suppose अब इसको मैं undo कर देता हूँ, and here we have a second option, that is a mutual. Okay, mutual is another type to trim a body. So how? Just go here in a mutual and just is asking for a surfaces, but in a standard asking for a tool body. यहाँ पे वो टूल बॉडी के लिए नहीं पूछता, म्यूचुअल में वो सरफेसेस के लिए पूछता है। ओके, अभी मेरे पास ये टू बॉडी है यहाँ पे, वन एंड सेकंड वन। तो अभी मैं क्या करता हूँ, दोनों बॉडी के फेसेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे। अभी आपको दोनों बॉडी में से किसको ट्रिम करना है या किसको रखना है आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कीप का यूज करना है या रिमूव। अभी मैं कीप का यूज करता हूँ कि मेरे को कौन कौन सा रखना है, राइट। जस्ट सिलेक्ट, मेरे को ये आउटर वाला चाहिए। मैंने क्या किया, इसको कीप सिलेक्शन में रखता हूँ, मैं कीप सिलेक्शन में। देन मेरे को बीच का भी रखना है, ओके, बाकी नहीं रखना। ओके, देखो मैंने क्या किया था, ये सिलेक्ट किया था कीप सिलेक्शन में और अंदर वाला, बाकी मैंने कीप में रखा ही नहीं, तो उसने बाकी सबको निकाल दिया है, राइट। मीन्स आपको ट्रिम टूल का यूज़ नहीं है सिलेक्ट करने का इसमें, और उसमें हमको क्या करना पड़ता है, अगर हमको ये प्रोफाइल बनाना था उसमें हमको 2 टाइम्स ट्रिम करना पड़ता है। हम एट ए टाइम एक ही बॉडी के सरफेस को ट्रिम कर सकते हैं स्टैंडर्ड की हेल्प से, बट म्यूचुअल में आप दोनों बॉडी में से किस सरफेस को रखना है, किसको रिमूव करना है, आप कर सकते हो। एंड हियर वन मोर थिंग, अभी फिलेट के लिए जाता हूँ, यहाँ पर जस्ट क्लिक इट, वो क्या करता है, बॉडी को यूनाइट भी करता है, राइट। ट्रिम करने के साथ साथ उसको यूनाइट भी कर देता है, बट स्टैंडर्ड में हमको नीट सरफेस की हेल्प लेनी पड़ती है बॉडी को मर्ज करने के लिए। ओके, दिस इज द ट्रिम सरफेस टूल, राइट। And in a trim have some other option,
सपोज करो अभी हमारे पास कुछ भी ऐसे प्लेनर सरफेस है लाइक दिस, अभी रेक्टेंगुलर भी बनाता हूँ मैं। ओके, अब इसको प्लेनर सरफेस को यहाँ पे सरफेस ऐड करना है, फिल करना है, तो उसके लिए हमारे पास सरफेस में टूल रहेगा प्लेनर सरफेस। जब भी प्लेनर प्रोफाइल रहेगा उसको फिल करना है, जस्ट गो टू प्लेनर सरफेस, सेलेक्ट द बाउंड्री, ओके, सरफेस ऐड करेगा लाइक दिस। ओके, अभी सरफेस के ऊपर जा करके मैं स्केच बना देता हूँ, एक सिंगल लाइन लाइक दिस। ओके, इसको भी ऐड कर देते हैं हम सरफेस, गो टू सरफेस, एक्सट्रूड इट लाइक दिस। अभी हम ट्रिम करेंगे, ट्रिम सरफेस। ओके, किसको ट्रिम करना है, ये बॉडी है, सेकेंडरी बॉडी है, रिमूव करता हूँ। देखो इसको एक्टिव करेंगे हम, इसको स्प्लिट ऑल। इसमें हमारे टू टाइप है, नेचुरल है, एक है लीनियर। लीनियर में जाएंगे तो ये हमको टाइप मिलते हैं। देखो हम इसको रिमूव कर सकते हैं, इसको या फिर वी हैव 3 चॉइस है, इसको रिमूव करना है। वो लीनियरली सेक्शन में क्रिएट करता है बॉडी को, बट नेचुरल में मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलेंगे, ऐसे भी करेगा वो, इधर से भी बनाएगा, इधर से भी करेगा, मीन्स वो हमको नंबर ऑफ चॉइस देता है। देखो इधर से बनाया, इधर से बनाया, बट लीनियर में हमको सिर्फ 1 2 3 ऑप्शन मिलते हैं, और नेचुरल में उसके अकॉर्डिंग उसने डिवाइड कर दिया इसको स्ट्रेट फॉलो करता है, मीन्स एक ऐसे स्ट्रेट लेके जाता है इसको ऐसे सेक्शन में। आपको जो भी रिमूव करना है आप उसको कर सकते हो। ओके, ऐसे रिमूव किया। क्या पता है अनट्रिम सरफेस, अनट्रिम में मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो उसको क्या करेगा वो दोबारा से, अगर हमने ट्रिम किया है या अनट्रिम करना है तो उसको दोबारा से वो सरफेस ऐड करेगा, दैट इज अनट्रिम सरफेस। ओके, एंड अभी नेक्स्ट है प्लेनर सरफेस। हम देख रहे थे अभी प्लेनर सरफेस का यूज क्या है, सरफेस को ऐड करना, बट वेयर इसके लिए कंडीशन है, इट विल ऐड मटेरियल ओनली फॉर अ प्लेनर प्रोफाइल। सपोज दिस इज अ प्लेनर प्रोफाइल, लाइक हम इसको सिलेक्ट करते हैं, दिस एज को फर्स्ट एज, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। जैसे प्रोफाइल क्लोज्ड हो जाता है तो सरफेस ऐड करेगा, बट ओनली फॉर अ प्लेनर। दिस अ प्लेनर मीन्स एक सिंगल प्लेन के ऊपर लाई करता है। इफ यू हैव ए प्रोफाइल लाइक कंटूर शेप या वेरिएबल शेप, अभी आपको शो कर देता हूँ कैसे कि कुछ ऐसा हमारे पास प्रोफाइल है। ओके, और इसको कर देते हैं सरफेस में जाकर के एक्सट्रूड, मिड प्लेन ऐसे एक्सट्रूड किया, राइट। और भी यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे ओपनिंग। ओपनिंग क्रिएट करने के लिए मैं बनाता हूँ एक सर्कल, राइट। सपोज करता हूँ मैं फीचर में जाता हूँ, रेफरेंस ज्योमेट्री में एक प्लेन क्रिएट करके लेता हूँ सम हाइट के ऊपर, यहाँ से कुछ हाइट के ऊपर मैं प्लेन बना देता हूँ ऐसे। ओके, उस प्लेन के ऊपर जाकर के स्केच बना देते हैं सर्कुलर शेप में, एग्जिट। अभी मैं करता हूँ उसको ट्रिम, सरफेस में जाकर के क्या करना है अपने को, ट्रिम करना है। ट्रिम का यूज करेंगे, वो स्टैंडर्ड का यूज करते हैं। टूल क्या है, ये हमारा टूल है, कौन सा, स्केच। देन रिमूव करना है, किसको रिमूव करना है, सेलेक्ट बीच वाले सरफेस को, ओके किया तो उसने रिमूव कर दिया। हम क्या, नॉट ओनली सरफेस, इफ यू हैव ए स्केच देन आप स्केच की हेल्प से भी ट्रिम कर सकते हो ऐसे। ओके, देन अभी क्या करते हैं, हम उसमें फिल करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्लेनर, सिलेक्ट इट। वो सिलेक्ट ही नहीं करेगा, देखो सिलेक्ट करेगा तो ऐड भी नहीं करेगा। क्यों नहीं ऐड करता, क्यों नहीं सिलेक्ट करता, बिकॉज इट्स नॉट अ प्लेनर। ये क्या, देखो एंगल के ऊपर ऐसे वेरिएबल शेप है ना उसका। प्लेनर मीन्स के सेम प्लेन के ऊपर, जैसे प्लेन है
अगर इसके ऊपर कोई प्रोफाइल रहेगा उसको ऐड करेगा, बट ये प्लानर ना होने के कारण इसलिए उसको ऐड नहीं करता, वो सरफेस ऐड नहीं करेगा। इफ़ यू हैव ए वेरिएबल शेप प्रोफाइल देन आप उसके लिए फील्ड सरफेस का यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज दिस कमांड, दिस टूल हियर, दैट इज अ फील्ड सरफेस। अभी आप उसको पिक करेंगे और उसको सरफेस ऐड करेगा। ओके, विद द हेल्प ऑफ फील्ड हम उसको सरफेस ऐड कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, सपोज करो अभी मैं एक प्रोफाइल और क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे, दूसरा सेकंड प्रोफाइल, सर्कुलर प्रोफाइल मैं यहाँ पे बनाता हूँ, बट ऑन अ प्लेनर, इट्स अ प्लेनर प्रोफाइल, क्योंकि वो वेरिएबल नहीं है ना, सिंगल प्लेन। देखो जैसे वो वेरिएबल था ऐसे, बट वो सिंगल प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसको हम फिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लानर, फिर सर प्लानर प्रोफाइल। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे मिडिल वाले प्लेन पे जाता हूँ और यहाँ पे जाकर के स्केच और बना देता हूँ, आर्क बना देता हूँ, जस्ट गो हियर, लाइक दिस, एग्जिट। अभी हम जाते हैं अगेन सरफेस में फिल करने के लिए। ये तो प्लेनर तो जस्ट नीचे वाले फेस को ही फिल करेगा, इसको इसके साथ सिलेक्ट करता हूँ तो कोई कुछ भी ऐड नहीं करने वाला वो। सो फॉर दिस हमको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू यूज अ फील्ड सरफेस, सिलेक्ट इट, दिस देखो प्लेनर का काम भी करता है वो और वेरिएबल शेप को भी ऐड करता है। एंड हियर इफ यू हैव फॉर दिस, अगर हमको इसके अलावा मटेरियल ऐड करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे हमने पैच बाउंड्री में इस वाली बाउंड्री को पिक किया सर्कुलर, यहाँ पे ऑप्शन है कंस्ट्रेंट कर्व, विद द हेल्प ऑफ दिस कर्व को सरफेस ऐड करना है। देखो उसके अलावा वो उसको ऐड करेगा लाइक दिस, ऐसे। ओके, you can use these two options, field surface and planar surface, to fill a object, to fill any patch opening, right? And here this is another one option, that is the offset surface. Offset surface, ऑफसेट सरफेस का यूज हम कैसे कर सकते हैं, कंसीडर ऑफसेट सरफेस हो जाता हूँ, किस फेस को आपको ऑफसेट करना है, आई वांट टू ऑफसेट दिस वन, कितने डिस्टेंस पे ऑफसेट करना है, ऑन 30, देखो 30 के डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट आ गया, 20 बोलता हूँ तो 20 के डिस्टेंस के ऊपर वो ऑफसेट करेगा उसको, राइट। बट यहाँ पे हमारे पास सपोज करो इसको सिलेक्ट किया, देन इस सरफेस को इसको सिलेक्ट किया, तो उसके अलावा वो देखो ऑफसेट बना देता है। कैसे चाहिए, इनवर्ड आउटवर्ड वो आप कर सकते हो, आउटवर्ड साइड में किया तो आउटवर्ड में ऑफसेट क्रिएट करेगा। ओके ओके, तो देखो लाइक दिस, उसने क्या किया है 20 के ऑफसेट के ऊपर सेकंड बॉडी क्रिएट कर दिया विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट सरफेसेस। अनदर वन, सपोज आई वांट ऑफसेट ऑफ दिस सरफेस, जस्ट क्लिक इट, उसका ऑफसेट क्रिएट हो जाएगा 30 अपवर्ड और डाउनवर्ड, कैसे किस डायरेक्शन में चाहिए आपको, ऑफसेट बना देगा उसका लाइक दिस। दिस इज द ऑब्जेक्ट सरफेस। ओके, सो आज के लिए इतना ही करते हैं इसमें। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और 2 लेक्चर में ऑलमोस्ट आपका सरफेसिंग फिनिश हो जाएगा। ओके, बिकॉज यहाँ पे मोस्टली जो कमांड आप यूज कर चुके हो वही कमांड रिपीट हो रहा है, बाकी जो कमांड्स हैं बहुत ही इतना डिफिकल्ट नहीं जाता, इजी कमांड्स हैं, देखने से भी मालूम पड़ता है कि क्या करना है उस कमांड का यूज करके अपने को, ठीक है ना। सो आज के लिए इतना ही करेंगे। ओके, अगर कोई भी डाउट आता है इसमें तो एक बार पूछिएगा और क्लैरिफाई करता हूँ आपके डाउट्स को, ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिएगा इसका। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय।